So hello everyone, welcome to Eye Contact Lat preparation. This is Ayush and you are watching Eye Contact Lat. So students, today we are going to cover a very important topic from constitutional law, and the topic is emergency provisions. And since we all know that constitutional law is a very important topic for legal reasoning for your CLAT examination, as well as it is one of the most important subject in your semester's exam as well. So today we are not just covering the topic from CLAT exam point of view. Yes, definitely we'll be emphasizing more over CLAT, how this topic is relevant for your CLAT examination, questions can be asked in which way and from which particular point. So we'll be covering the topic from the aspect of CLAT examination only. But if you are in semester exam as well, and if you have already cleared CLAT examination or already in your law school, so and you want to refer something for your basic conceptual clarity of emergency provisions, so this video is perfect for you. So make sure that you are watching it throughout with me, and you are watching it till the very end, and don't forget to subscribe, don't forget to like the video as well. And with that, let's begin with our topic. So students, the topic is emergency provisions, and it is provided in part 18 of the Indian Constitution, which talks about the provisions related to emergency, and the articles which are covering this particular provisions are Article 352 to Article 360. Now students, we'll be covering what is the relevance of emergency, why is it provided in Indian Constitution, has it ever been promulgated, how many types of emergencies are there, and how to promulgate emergency, for how much time an emergency is applicable, and how the questions can be asked in CLAT examination. We'll be covering everything in this video, right? So with this, let's begin with our topic, students. Yes, all right. So emergency provisions provided under Article 352 to Article 360, right? So first, let's try to understand the Constitution's power during crisis, right? So in normal times, India, our country India, it functions as a federal democracy. Federal democracy, students, it is what is the federal, what is the meaning of federal democracy? So as we all knew that if we talk about the salient features of Indian Constitution, so our constitution, it is a mix of unitary and federal system, right? We have certain features which represent the federal mode of democracy in India, and we have certain features which represent the unitary basis of our government, right? So India is a mix of unitary and federal system, right? Now what is unitary, what is federal? So federal basically means distribution of power, right? So in our democratic system, what we see is that we have a central government at union level, all right, which is operating for the whole Union of India. The BJP government, led by the NDA supporters, is being elected at the central level, right? Then we have government at state level as well. So we have government at unitary level, then we have governments at state level as well, which are operating on their own states, right? Then within the state government, we have panchayats and municipalities, which are operating on their different villages and towns, right? So this is the meaning of federal system. Federal basically means distribution of power. The power, it is not centralized at only one place, right? तो फेडरल का मीनिंग स्टूडेंट्स बेसिकली यही होता है कि जो आप लोगों का पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिवाइड हो रखा है, किसी एक के पास पावर प्रोमulgated नहीं है. जैसे कि यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है विच इज ऑपरेटिंग एट इट्स ओन लेवल, ठीक है. सपोज इंडिया में बस यूनियन गवर्नमेंट होती, स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबलीज ना होती, तो वो यूनिटरी सिस्टम होता. बट वी हैव गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग फेडरल सिस्टम. बट देन अगेन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फेडरलिज्म का नहीं है. कुछ कुछ पावर्स हमारे पास, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिससे ये लगता है कि वी हैव एन फेडरल सिस्टम. कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जिससे हमें ऐसा लगता है कि वी आर ऑपरेटिंग एट दिस unitary level, right? So we are not only unitary or only federal, we are a mix of both. But what we have to understand here is that under normal circumstances, our country is operating at mostly a federal level, because there is a distribution of power. The power is not only located with central government, but it is being provided to state governments as well, and then it has been again delegated below state government to the panchayats and to the municipalities, right? So what we have to understand is that in normal times, our India, it functions as a federal democracy. But
बट ड्यूरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स, मीन्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स क्या है, यानी कि अभी हम लोग नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में है, बट देन देयर आर सर्टेन times when the government it has to declare that we are not in normal circumstances and we are under certain extraordinary circumstances, right? So under those circumstances the constitution allows the center to assume greater control to protect the nation's integrity, right? So iska matlab ki under normal circumstances we are operating at a federal level, but under extraordinary circumstances our federal system it gets accumulated to one unitary system, right? तो यानी कि फेडरल सिस्टम जो है हमारा वो डिसॉल्व हो जाता है इमरजेंसी के टाइम पे, और हम सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही उसके पास ही टोटल कंट्रोल होता है, राइट? सो दीज आर कॉल्ड emergency provisions given in part 18 of the Indian Constitution. Which part? Part 18. All right. So moving ahead, why emergency provisions exist? मतलब क्यों exist करते हैं? मतलब is there any particular need that our constitution makers had to figure out and insert these provisions into the constitution? What was their intent behind that? Let's try to get that intent. So their intent was basically to handle unusual situations like war, rebellion. Rebellion क्या होता है? देश के अंदर ही विद्रोह हो जाए अगर, ठीक है? तो not only rebellion but armed rebellion. आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है? आर्म्ड मतलब हथियारों के साथ अगर कोई विद्रोह करने आ जाए गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आर्म्ड रेबिलियन और फाइनेंशियल कोलैप्स, अगर कोई बहुत ज्यादा ना वित्तीय दिक्कत आ जाए, कोई बहुत ज्यादा ना फाइनेंस की दिक्कत आ जाए. सो फर्स्ट रीजन इज दिस. देन टू एंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नमेंट एंड नेशनल स्टेबिलिटी, कि अगर मान लीजिए ऐसी कोई सी भी अनयूजुअल सिचुएशन अगर होती है कंट्री में, तो उस टाइम हमारी जो गवर्नेंस है एटलीस्ट वो कंटिन्यूएशन में रहे और नेशनल स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, राइट? देन टू अलाउ द सेंटर टू एक्ट डिसाइसिवली व्हेन नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल्स, ठीक है? तो टू अलाउ द सेंटर, सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज सेंटर इज ऑब्वियसली we have a distribution of power, but then center still has more power in comparison to state because it is operating at national level. So to allow the center to act decisively when normal constitutional machinery fails. फाइन. सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉल्ड देम द सेफ्टी वाल्व ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कभी भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में आ जाए, हमारे ऊपर कोई दूसरे देश का एक्सटर्नल एग्रेशन हो जाए, हम किसी पे कर दे, ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज बनी रहे, वो इंटैक्ट रहे. इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा है कि इमरजेंसी प्रोविजंस आर द सेफ्टी वाल्व ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ रखने के लिए ये है, राइट? सो मूविंग अहेड, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसके, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस अगर हम देखा जाए स्टूडेंट्स, तो इट इज प्रोवाइडेड इन पार्ट 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? सो हियर आर द फीचर्स आई हैव प्रोवाइडेड एंड हियर आर द डिटेल्स. फाइन. तो पार्ट, विच पार्ट इज अंडर विच पार्ट are emergency provisions provided? So part 18, right? Then articles, the articles which provide for emergency provisions, so articles 352 to article 360. Then power, it lies with the president on advice of the cabinet. मतलब emergency induce करने की या emergency लगाने की power किसके पास है? तो power lies with the president, but then again president अपने मन से नहीं लगा सकते हैं, on advice of the union cabinet. union cabinet उन्हें कहेगी कि अब आप president इमरजेंसी की घोषणा करो, तो वो घोषणा करेंगे. ऐसा नहीं कि अपने मन से उनको लगा कि अरे इमरजेंसी लगानी है तो वो नहीं लगा सकते, ठीक है? लगाएंगे भी तो उसके बाद इमरजेंसी का रेजोल्यूशन जो है वो हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से पास होता है, बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, वहां से ही नहीं पास होगा, ठीक है? तो अनटिल एंड अनलेस यूनियन कैबिनेट नहीं चाहेगा, नहीं लग सकती इमरजेंसी, ठीक है? देन कंट्रोल क्या होता है, किसके पास होता है? तो पार्लियामेंट मस्ट अप्रूव एंड रिव्यू एवरी इमरजेंसी, ठीक है? पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा, रिव्यू करना होगा सारी इमरजेंसीज को. देन नेचर, टेम्पररी एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी, मेंट फॉर लिमिटेड यूज, ठीक है? इमरजेंसी टेम्पररी होती है, एक्स्ट्रॉर्डनरी टाइम्स के लिए होती है, फिर सिर्फ लिमिटेड यूज के लिए. ये नहीं कि आप कैसे भी इमरजेंसी लगा दो, कभी भी डिक्लेयर कर दो और पूरा टेन्योर ही अपना इमरजेंसी में निकाल लो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस. देन मूविंग अहेड, types of emergency, students. So what are the types of emergencies? So students, we have 3 types of emergencies in here. One is provided under article 352 which talks about national emergency. So let me just tell you first in layman language कि exactly कितने types की emergencies होती है, फिर उसको हम लोग थोड़ा सा law के point of view से समझेंगे. So layman language में just understand कि we have 3 types of emergencies: national, state emergency which you also call as president rule, and then financial emergency. So national emergency is provided under article 352
ऑल राइट. एंड नेशनल इमरजेंसी कब लगती है? व्हेन एनी कंट्री इज अटैकिंग अपॉन अस, यानी कोई अगर एक्सटर्नल अग्रेशन हो रहा है तो, ठीक है, या फिर कोई आर्म्ड रेबिलियन अगर कंट्री के अंदर हो गया, कोई अगर आर्म्ड रेबिलियन हथियार उठा के लोग गवर्नमेंट के विद्रोह में अगर आ जाते हैं, तो उस केस में भी द गवर्नमेंट इट कैन प्रोम्युलगेट नेशनल इमरजेंसी. सो नेशनल इमरजेंसी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ग्राउंड इसके क्या क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन, राइट. कॉमन नेम्स इसके क्या क्या है? पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री इमरजेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है. देन ये तो पहली इमरजेंसी हो गई विच इज नेशनल इमरजेंसी. देन वी हैव स्टेट इमरजेंसी विच इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356, ठीक है. स्टेट इमरजेंसी को लगाने का एक ही ग्राउंड होता है, कि दो ग्राउंड्स होते हैं, कि या तो स्टेट गवर्नमेंट सेंटर के डायरेक्शंस के हिसाब से काम नहीं कर रही है, या फिर स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही, ठीक है. इन दो ग्राउंड्स के आधार पर the center it can declare a state emergency upon any state, which you also call as precedent rule. It is provided under which article? Article 356. So it is provided under article 356 of the Indian Constitution. Reasons क्या क्या है? Failure of constitutional machinery in state, also called as precedents rule, right? And then we have financial emergency which is provided under article 360 of the Indian Constitution. इसका मतलब क्या होता है? जब देश में वित्त की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए. क्या आज तक ये कभी प्रोम्युलगेट हुई है? कभी नहीं हुई है. तो विच, अगर क्वेश्चन रहता है कि विच ऑफ दीज इमरजेंसीज हैज नेवर बीन प्रोम्युलगेटेड, सो इट विल बी फाइनेंशियल इमरजेंसी. कोविड के टाइम पे एक बार सोचा गया था बट नहीं लगाई थी. इवन जब हम लोग 1990s का भी वो इंसिडेंट पढ़ते हैं, जब एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, जब हमारी कंट्री बहुत ज़्यादा डेट पे थी, हमने अपना सोना गिरवी रखा था, उस टाइम पे भी हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं प्रोम्युलगेट की थी, ठीक है. तो रिमेंबर द स्टूडेंट्स, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 360. एंड कब इसका ग्राउंड क्या हो सकता है? थ्रेट टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया. इकोनॉमिक इमरजेंसी भी इसको कहते हैं, राइट. ऑल राइट. सो इसका याद करने का कोई शॉर्टकट है? अगर आपको तीनों इमरजेंसी याद करनी है तो इसका कोई शॉर्टकट है? यस, आई हैव प्रोवाइडेड यू विद अ शॉर्टकट एज वेल. सो द शॉर्टकट इज नस्ताफी. नस्ताफी, a term which you can remember. Nastafi matlab, if you are familiar with English movies or even English articles, which you must be, because English and critical reasoning they require a lot of reading as well. So Nastafi is a term which you can relate with yourself. आपने मतलब familiar, it should be a familiar word with you for you I guess. तो Nastafi basically means, Nastafi में क्या है? NA, it is for national emergency. STA, it is for state emergency, and FI, it is for financial emergency. So NASTAFI, national state financial, 352, 356, 360, right? National state financial. So this was all about this was about the students, types of emergencies which we have discussed in here. We have discussed under which article they are provided, under which grounds you can promulgate them, and the common names for them, right? So the shortcut to remembering this is NASTAFI. Please remember, students. Then moving ahead, we have, let's discuss about each emergency now one by one. So starting with national emergency, so it is provided under article 352 of the Indian Constitution, right? इसको अगर promulgate करना है तो क्या grounds होने चाहिए? On under which circumstances national emergency can be imposed? So there should be at least any war. कोई war अगर हो रहा हो जिसमें इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा हो, किसी ने हम पे हमला कर दिया, सपोज अगर बदकिस्मती से पाकिस्तान हम पे हमला करता है, वैसे तो पिल जाएगा, कभी करने की हिम्मत नहीं करेगा, बट सपोज अगर वो कर दे तो अंडर दो सर्कमस्टांसेस, जैसे अभी हमने देखा था जब पहलगाम के बाद हमने जब उनके ऊपर स्ट्राइक्स करी थी, तो फिर हम लोगों ने नोटिस किया था उनके भी ड्रोन्स वगैरह आ रहे थे. उस टाइम पे देयर वाज अ पॉसिबिलिटी दैट गवर्नमेंट माइट इम्पोज नेशनल इमरजेंसी, बट देन नहीं करी थी, नीड नहीं लगी थी गवर्नमेंट को. सो एक्सटर्नल एग्रेशन, या तो वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रेबिलियन की चेंज्ड फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस बाय 44th amendment. All right. So this armed rebellion, it was before 44th amendment known as internal disturbance. All right. But after the amendment of 44th amendment, it was renamed as armed rebellion. यानी कि देश के अंदर विद्रोह हो जाए सरकार के खिलाफ, ठीक है, हथियार वाले विद्रोह, लोग अगर मतलब समझ रहे हो आप, जैसे अभी नेपाल में जो हुआ था, दैट सिचुएशन अगर हो जाती है तो सपोज, तो अगर उस वो दैट विल बी काउंटेड अंडर आर्म्ड रेबिलियन. सो द ग्राउंड्स आर वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबिलियन. आई बिलीव देयर इज नो कंफ्यूजन अमंग यू स्टूडेंट्स. कोई भी कंफ्यूजन हो, कीप कमेंटिंग इट इन द कमेंट सेक्शन. देन डिक्लेरेशन.
ठीक है, कौन डिक्लेयर करता है, हु डिक्लेयर्स द इमरजेंसी, हु अनाउंस की इमरजेंसी हो गई है, या हु promulgates national emergency, right? तो it is promulgated by the president on written advice of the cabinet, ठीक है। तो प्रेसिडेंट ही इसको अनाउंस करते हैं, लेकिन अपने मन से, अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ कि अपने मन से वो ऑपरेट नहीं कर सकते, रिटर्न एडवाइस उनको आएगी कैबिनेट की, तब जाके वो उसको जाकर के सिंपल बोल देंगे, ठीक है। अपने मन से नहीं बोल सकते, उनको जब ऑर्डर आएगा बोल, मतलब जब उनको कहा जाएगा बोलने के लिए, तब वो बोलेंगे, फाइन। देन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ दी हाउसेस विद इन 1 मंथ, 1 मंथ के अंदर ही अप्रूव हो जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी मैं इसको बता देता हूँ, लेट्स गो थ्रू द पॉइंट्स, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन वेरी इजी लैंग्वेज। एंड देन इट इज वैलिड फॉर 6 मंथ्स, एक्सटेंडेबल इनडेफिनिटली विद रिपीटेड अप्रूवल, राइट। अब स्टूडेंट्स क्या तरीका होता है, एक बार इजी लैंग्वेज में समझ लो। देखो सपोज आज सपोज हमारे ऊपर अटैक होता है किसी भी XYZ का, ठीक है, और गवर्नमेंट को परसों तक ऐसा लगता है कि नहीं, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ इमरजेंसी एंड वी नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी, ठीक है। उसके बाद वो रिटर्न एडवाइस देंगे, जो कैबिनेट होगी ना, यानी कि जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं जिसमें सिर्फ मिनिस्टर्स इन्वॉल्व हैं, वो कैबिनेट प्रेसिडेंट को लिख करके देगी कि भैया बहुत ज़्यादा सिचुएशन देश में अभी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, वी नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी टू कीप एवरीथिंग इंटैक्ट। तो प्रेसिडेंट को उनकी रिटर्न एडवाइस आ गई, अब प्रेसिडेंट जाकर ये घोषणा करेंगे कि भैया इमरजेंसी है एंड दिस देयर इज एन एक्सटर्नल एग्रेशन और व्हाट एवर द कॉज देयर इज, ही और शी विल कोट इट, मतलब ही और शी कॉल प्रेसिडेंट विल कोट इट द रीजन फॉर द इमरजेंसी एंड देन he'll or she'll just announce that we are in the state of emergency. आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद क्या होता है कि वो इमरजेंसी जो प्रेसिडेंट ने घोषणा करी है ना, उसको दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से पास होना होगा 1 महीने के अंदर। जैसे कोई बिल पास होता है ना, जैसे कि कोई बिल पास होता है, बिल कैसे पास होता है, आइदर बाय 2/3 मेजोरिटी, आइदर बाय योर दिस मतलब या तो सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी जहाँ पे आपको 2/3 मेजोरिटी के साथ पास कराना होता है। तो सिमिलरली इमरजेंसी नीड्स टू बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस विद इन 1 मंथ। मतलब अगर आज मैं राष्ट्रपति और मैंने आज अगर घोषणा करी है कि भैया राष्ट्रपति हमें इमरजेंसी की नीड है, तो मेरी घोषणा करने के बाद अगर मैंने आज, यानी कि टुडे इज 10th ऑफ द नवंबर, 10th नवंबर को अगर मैंने घोषणा करी है, तो 10 दिसंबर से पहले तक मेरी इमरजेंसी जो मैंने डिक्लेयर करी है वो अप्रूव हो जानी चाहिए दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट से, ठीक है। और एक बार वो अप्रूव हो जाएगी ना, उसके बाद वो 6 महीने तक लगी रहती है, ठीक है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, आई विल बी रिपीटिंग दिस अगेन। सपोज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड यू आर द कैबिनेट, ठीक है। यू टोल्ड मी कि सर देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ इमरजेंसी, वी आर फेसिंग एन एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वी नीड टू डिक्लेयर इमरजेंसी। सो मी बीइंग द प्रेसिडेंट, आई विल डिक्लेयर द इमरजेंसी, राइट। what will happen then कि after my promulgation that I have declared the emergency, both the houses of the parliament, means the Lok Sabha and the Rajya Sabha, they need to approve this emergency within 1 month, ठीक है। एक बार उनका अप्रूवल मुझे मिल जाएगा, उसके बाद वो इमरजेंसी फिर 6 महीने तक वैलिड रहती है। फाइन, आई बिलीव कोई कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा। अच्छा, 6 महीने के बाद क्या होता है, फिर 6 महीने के बाद अप्रूव कराना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंडेबल इनडेफिनिटली विद रिपीटेड अप्रूवल, बार बार अप्रूव कराओ, उसको 6 महीने तक आप वैलिड कराते जाओ, ठीक है। देन 44th अमेंडमेंट मेड इट हार्डर टू डिक्लेयर इमरजेंसी, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से पहले ऐसा क्या था, इमरजेंसी इजीली डिक्लेयर हो जाती थी, वो भी हम लोग अभी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए, देन द इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो हमने ये देख लिया नेशनल इमरजेंसी का क्या प्रोविजन होता है, कहाँ प्रोवाइडेड है, क्यों लगानी पड़ती है, कैसे लगती है, कितने टाइम तक लगी रहती है, ठीक है। हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। प्लीज इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट, यू जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू अगेन प्रोवाइड यू विद अ मोर सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ दिस, बट आई हैव बीन ट्राई टू मेक श्योर कि मैं जितना सिंपली आपको बता पाऊँ उतना सिंपली हम लोग करें इसे, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम, सबसे पहले इफेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी क्या होता है। तो जो हमारा फेडरल सिस्टम है, मतलब वी हैव अ सिस्टम मिक्स ऑफ फेडरल एंड यूनिटरी, बट जो हमारा थोड़ा बहुत भी जो फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कि सेपरेशन ऑफ पावर जैसे मैंने बताया था, ठीक है, तो इट बिकम्स यूनिटरी, ठीक है। पार्लियामेंट कंट्रोल्स स्टेट सब्जेक्ट्स, यानी कि जो हमारी लिस्ट एक प्रोवाइडेड है ना स्टूडेंट्स, जिसमें स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि वो लिस्ट हमारी जो है कौन से स्केड्यूल में प्रोवाइडेड है, ठीक है। दिस इज द होमवर्क टू यू फ्रॉम माय साइड। सो जो हमारा
स्टेट लिस्ट है जिसपे से स्टेट गवर्नमेंट लेजिस्लेट कर सकती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, उस पे यूनियन गवर्नमेंट लेजिस्लेट करती है, ठीक है। तो यूनियन गवर्नमेंट इज लेजिस्लेटिंग अपॉन यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन मोस्ट केसेस, बट इन द केसेस ऑफ इमरजेंसी वो स्टेट लिस्ट पे भी ऑपरेट कर सकती है, ठीक है। तो हमारा फेडरल सिस्टम पूरा यूनिटरी बन जाता है और पार्लियामेंट इट कंट्रोल्स द स्टेट सब्जेक्ट्स। देन फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ठीक है, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाता है। देन फंडामेंटल राइट सस्पेंशन ऑर्डर्स, प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ अदर राइट्स अंडर आर्टिकल 359 एक्सेप्ट 22 एंड 21, सॉरी 20 एंड 21, ठीक है। तो आपके आर्टिकल 20 और 21 के अलावा सारे के सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो सकते हैं आपके, ठीक है। देन आपका ड्यूरेशन क्या है, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने के लिए रखती है और कितनी बार भी आप इसे रिन्यू करा सकते हो। जुडिशियल रिव्यू, पहले 44th अमेंडमेंट से पहले इट वाज नॉट अंडर द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, बट नाउ इट इज अंडर द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू, राइट, आफ्टर 44th अमेंडमेंट। तो आप ये टेबल एक बार देख लीजिए, ये आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। सी, एक फंडामेंटल राइट है स्टूडेंट्स जो बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं हो सकता है, एंड दैट इज एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है। आर्टिकल 17 एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इट कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस एक्सेप्ट दैट आपका आर्टिकल 20 एंड 21 भी सस्पेंड नहीं हो सकता है, विच टॉक्स अबाउट योर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट देन उसके अलावा आपके सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। क्या आज तक सर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज हुई है? यस, it has been imposed 3 times and this question has been asked in CLAT multiple times, ठीक है। कब कब हुई थी? 1962 में सबसे पहली बार हुई थी, इंडो चाइना वॉर। दिस टाइम एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लाल बहादुर शास्त्री जी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन आपका 1971 पाकिस्तान वॉर, 1975 इंटरनल इमरजेंसी, ठीक है, जो इंदिरा गांधी जी वाली हम लोग बात करते हैं इमरजेंसी की। एक वीडियो में प्रॉपर उस पर भी लाऊंगा कि वो क्या सीन था, इमरजेंसी क्यों इम्पोज करी थी इंदिरा गांधी जी ने, क्या था। हालांकि आई हैव मेड अ रील अपॉन दैट, बट देन आई विल मेक अ प्रॉपर गुड डिटेल यूट्यूब वीडियो कवरिंग ऑल द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस, ऑलराइट। देन so this emergency it has been declared 3 times students, 1962, 1971 and 1975, all right। चलो moving ahead, now let's discuss about state emergency। state emergency क्या होती है, कहाँ प्रोवाइडेड है, कैसे लग सकती है, कितने टाइम के लिए लग सकती है, राइट। सो state emergency also known as president's rule is provided under article 356 of the Indian constitution। आर्टिकल 356 कौन से ग्राउंड में आप इसको प्रोमिलगेट कर सकते हो? सो इट कैन बी प्रोमिलगेटेड ओनली, देयर आर 2 रीजंस। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ फॉलो नहीं हो रहा है उस स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है। सेकंड इज बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट और अदरवाइज। बेस्ड ऑन गवर्नर्स रिपोर्ट मतलब कि, और अदरवाइज का मतलब सिंपल ये है कि सेंटर के डायरेक्शन के हिसाब से अगर कोई काम नहीं कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो प्रोसेस क्या होता है? अगेन इट इज प्रोक्लेम्ड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर पूछ लेता है, तो स्टूडेंट्स मेक श्योर कि इट इज प्रोमिलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट, नॉट बाय द गवर्नर, राइट। देन इट अगेन इट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट्स विद इन 2 मंथ्स। अब याद रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितना टाइम लिखा हुआ है? 2 मंथ्स, ठीक है। पार्लियामेंट को अगर प्रेसिडेंट ने अगर प्रोक्लेम करा है स्टेट इमरजेंसी, तो पार्लियामेंट उसको कितने टाइम तक अप्रूव कर सकता है? विद इन 2 मंथ्स। लेकिन नेशनल इमरजेंसी कितने टाइम तक कर पा रहा था? विद इन 1 मंथ, राइट। तो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस स्टूडेंट, याद रखना, यहां कंफ्यूज नहीं होना है। नेशनल इमरजेंसी अगर प्रेसिडेंट ने आज प्रोमिलगेट करी तो उसके 1 महीने के अंदर ही उसको सेंटर को अप्रूव करना होगा, अगर वो चाहती है कि वो आगे रहे, ठीक है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी के लिए 2 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। कैबिनेट के पास अगर स्टेट इमरजेंसी को अप्रूव कराना है तो उसके लिए 2 महीने होते हैं, 2 मंथ्स, ऑलराइट। तो यही यहाँ पे एक डिफरेंस आप पकड़ लो, वहां 1 मंथ है अप्रूवल के लिए नेशनल इमरजेंसी में, स्टेट में 2 मंथ्स है। देन कंटिन्यूज फॉर 6 मंथ्स, मैक्सिमम 3 इयर्स विद स्पेशल अप्रूवल, ठीक है। अगर एक बार अप्रूव हो गई है, 2 महीने के अंदर अप्रूव कर देता है पार्लियामेंट, तो वही 6 महीने के लिए चलती रहेगी। लेकिन 6 महीने के बाद आप जब फिर रिन्यूअल कराओगे तो वो लग जाएगी, लेकिन ऐसे कर करके आप मैक्सिमम 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको वहां इलेक्शन कराना ही पड़ेगा। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में आप इनडेफिनिटी तक लगा सकते हो, आपको जब तक रिक्वायरमेंट लग रही नेशनल इमरजेंसी की, आप उसको अप्रूव करा करा के 6-6 महीने के अप्रूवल के बाद कितने भी टाइम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप 6-6 महीने के अप्रूवल के बाद मैक्सिमम 3 साल तक ही चला सकते हो, ठीक है। तो प्लीज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स,
देन वी हैव इसके इफेक्ट्स क्या क्या है, तो स्टेट असेंबली इट आइदर गेट्स डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, ठीक है, स्टेट असेंबली या तो डिसॉल्व हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है। देन प्रेसिडेंट गवर्न्स थ्रू द गवर्नर, प्रेसिडेंट स्टेट को चलाते हैं थ्रू गवर्नर, ठीक है, अगेन गवर्नर क्या होता है, सेंटर का एजेंट होता है। तो अगर मैं ये बात बोल रहा हूँ या फिर अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट इज गवर्निंग द स्टेट गवर्नमेंट, तो वो सिर्फ ऑन पेपर, रियलिटी में ये नहीं कि प्रेसिडेंट खुद लेजिस्लेट कर रहे हैं, खुद सोच रहे हैं, खुद कर रहे हैं, वो खुद नहीं कर रहे हैं, कर सेंटर ही रहा है, बस नाम प्रेसिडेंट का आ रहा है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट गवर्न्स थ्रू गवर्नर, देन पार्लियामेंट इट मेक्स लॉज फॉर दैट स्टेट, लिखा ही है नीचे कि पार्लियामेंट मेक्स लॉज फॉर दैट स्टेट, ऑलराइट। तो इसका सबसे बड़ा केस लॉ एक क्या है, एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1994 का केस है, प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। सो अगर ये क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट्स, अभी हम लोग ये केस लॉ भी समझेंगे, अलग से एक वीडियो लेकर आ रहा हूं मैं इसके लिए, ठीक है, जिसमें हम लोग सारे केस लॉ समझेंगे। आई एम नॉट इंड्यूसिंग केस लॉ इन दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज जस्ट मेंट फॉर इमरजेंसी, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर इसके बारे में डिस्कशन करने लग जाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कवर एवरी टॉपिक। सो फॉर द केस लॉज आई एम ब्रिंगिंग अ सेपरेट सेशन जिसमें हम सिर्फ केस लॉज डिस्कस करेंगे प्रॉपर विद फैक्ट्स एंड विद व्हाट द कोर्ट हेल्ड। बट देन इन दिस वीडियो just take it as a reference that SR Bomai versus Union of India was the case which made that precedent rule is subject to judicial review, right? So this was all about the student. Then financial emergency provided under article 360 of the Indian Constitution, provided under article 360 of the Indian Constitution। अब इसका ग्राउंड क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। अगर हमारा लोन लेने की क्षमता, हमारा जो क्रेडिट लेने की क्षमता है वो अगर कम हो जाती है, एकदम से बहुत खराब हो जाती है, या फिर हमारे देश की जो वित्तीय स्थिति है वो अगर डगमगाने लगती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी सी खराब होने लगती है, तो ये उसका ग्राउंड है लगाने का, ठीक है। ग्राउंड क्या है, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी लगाने का क्या ग्राउंड था, एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है, आर्म्ड रेबिलियन हो रहा है, कोई वॉर की सिचुएशन, ऐसी स्टेट इमरजेंसी का क्या था, फेलियर ऑफ स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन दैट स्टेट। तो ऐसी फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने का क्या ग्राउंड है, इफ देर इज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड, ठीक है। डिक्लेरेशन क्या है, कैसे लगती है, बाय प्रेसिडेंट, मस्ट बी अप्रूव विद इन 2 months। अगेन स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकते हैं, प्रोम्युलगेट कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर क्या कहते हैं उसको अप्रूव करना होगा, कैबिनेट को अप्रूव करना होगा। तो नेशनल इमरजेंसी में 1 महीना लग रहा है, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी में 2-2 महीने का टाइम मिलता है, ठीक है, अप्रूव करने के लिए। देन एक बार अगर अप्रूव हो गई तो इट कंटिन्यूज अंटिल रिवोक्ड, नो टाइम लिमिट, ठीक है, एक बार। अब ये डिफरेंस हमें स्टूडेंट्स याद रखना है तीनों का, मैं तीनों का बता दूंगा आपको भी। यही देखो, जब नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोम्युलगेट करते हैं, उसके बाद उसको पार्लियामेंट को 1 महीने के अंदर अप्रूव करना होता है। अगर वो अप्रूव हो जाती है 1 महीने के अंदर, तो 6 महीने तक लगी रहती है इमरजेंसी, ठीक है। 6 महीने के बाद आप उसको हर 6-6 महीने में अगर आपको रिक्वायरमेंट लग रही है आगे कंटिन्यू करने की नेशनल इमरजेंसी, तो आपको बस उसको 6-6 महीने के बाद अप्रूव कराना होगा बार बार, और उसे आप अनगिनत टाइम, कितने भी टाइम तक लगा सकते हो, ठीक है। मतलब आज लगाई, ठीक है, 6 महीने तक चलेगी, फिर 6 महीने बाद जब खत्म हो रहा होगा टाइम पीरियड, आप फिर उसको अप्रूव करा लो, फिर उसको 6 महीने एक्सटेंड करा लो, ठीक है। तो ऐसे 6 महीने एक्सटेंड करा करा के आप कितनी बार भी इमरजेंसी लगा सकते हो, 10 साल तक, ठीक है। लेकिन स्टेट इमरजेंसी अगर आज राष्ट्रपति प्रोम्युलगेट करते हैं, तो पहली बात तो सेंटर को 2 महीने का टाइम मिलेगा, जो कि नेशनल में 1 महीने का मिल रहा था। अब सेंटर के पास 2 महीने का टाइम है उस इमरजेंसी को अप्रूव करने के लिए। सेंटर के अप्रूव करने के बाद 2 महीने का मतलब टाइम मिलता है, अगर मान लीजिए अप्रूव कर दी तो वो 6 महीने तक लगी रहती है, ठीक है। 6 महीने के बाद आप उसको दोबारा से अप्रूव करा करा के मैक्सिमम 3 साल तक ही लगा सकते हो, 3 साल के आगे आप नहीं लगा सकते हो, ठीक है। ऐसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या है कि अगर एक बार इसको कैबिनेट अप्रूव कर देता है 2 महीने के अंदर, राष्ट्रपति के प्रोमिलगेशन के बाद 2 महीने के अंदर, द सेम टाइम विच इज गिवन इन स्टेट इमरजेंसी, 2 महीने के अंदर अगर अप्रूव कर देता है कैबिनेट, तो उसके बाद वो लगी रहती कितने भी टाइम तक, जब तक ना हटवा दो, जब तक हटाने का प्रॉपर रिवोकेशन नहीं डालेगा प्रेसिडेंट, तब तक नहीं हटेगा। इसमें कोई वैसा नहीं है कि 6 महीने तक लगी रहेगी फिर 6 महीने के बाद रिन्यू कराओ, ऐसा नहीं है, एक बार लगा दी तो लगी रहेगी, फाइन। तो दिस इज अबाउट द डिक्लेरेशन। देन इफेक्ट इसके क्या है, तो सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग जजेस कैन बी रिड्यूस्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी को कम कर सकती है गवर्नमेंट, देन इंक्लूडिंग जजेस एज वेल। देन ऑल स्टेट्स मस्ट फॉलो सेंटर्स फाइनेंशियल डायरेक्शन, फाइनेंस को लेकर के जो भी सेंटर की गाइडलाइंस आएंगी स्टेट को वही फॉलो करनी होगी, बिकॉज इमरजेंसी के टाइम पे तो स्टेट जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है वो यूनाइट होकर यूनिटरी बन जाता है ना। देन मनी बिल्स
और स्टेट्स में नीड प्रेसिडेंशियल एक्सेंट। तो जो भी मनी बिल्स या फाइनेंशियल बिल्स किसी भी स्टेट के होंगे तो उसमें प्रेसिडेंट की भी एसेंट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये इसके इफेक्ट है फाइनेंशियल इमरजेंसी के। कितनी बार लगी है फाइनेंशियल इमरजेंसी? एक भी बार नहीं लगी स्टूडेंट्स, नन, ठीक है। आज तक फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है एंड जस्ट होप कि कभी ना लगे, ठीक है। चलो, नाउ this is I have created a table, students, for you guys to differentiate the emergency, all the three types of emergencies which we have. So through this table I have provided certain headings as well, and based on these headings we will try to differentiate the three types of emergencies, right? So first aspect is ground, कि किस basis पे, ground means basis, किस बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा रहे हो। सो सबसे पहला, नेशनल इमरजेंसी में क्या ग्राउंड आपका होता है? वॉर या आर्म्ड रेबिलियन, ठीक है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि कोई युद्ध हो रहा है, कोई हम पर अगर हमले करने की सोच रहा है, कर रहा है, ठीक है, या फिर कोई आर्म्ड रेबिलियन मतलब देश के अंदर ही कोई अगर हथियार लेकर के कोई विद्रोह करने आ जाए, ठीक है। देन स्टेट इमरजेंसी, अगर स्टेट गवर्नमेंट का फेलियर हो रहा है उसमें, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन को वहां पे ठीक से नहीं फॉलो कर पा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी को फॉलो नहीं करवा पा रही है, तो उस केस में इम्पोज हो सकती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हो रही है कंट्री में, ठीक है। देन द सेकंड एस्पेक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय हुम, कौन डिक्लेयर करता है? तो नेशनल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, स्टेट इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी भी प्रेसिडेंट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तीनों इमरजेंसीज को प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। अगेन अपने मन से नहीं कि आज प्रेसिडेंट सो के उठे, उन्हें लगा चलो इमरजेंसी डिक्लेयर कर दो, नहीं, उनको कैबिनेट जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं कर सकते, ठीक है। देन अप्रूवल, जो हम लोग अभी 3 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो नेशनल इमरजेंसी विद इन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर, ठीक है। वहीं अगर आप बात करो स्टेट इमरजेंसी की, तो विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम मिल रहा है। और अगर आप फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करो, देन अगेन विद इन 2 मंथ्स, 2 महीने का टाइम मिल रहा है, ठीक है। ड्यूरेशन 6 मंथ्स, ठीक है। अगर आप एक बार अप्रूव करवा दो तो उसके बाद 6 महीने तक लगी रहती है, विच इज रिन्यूएबल। यहां पे भी सेम अगेन वही चीज, 6 महीने तक रिन्यूएबल, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक आप खींच सकते हो, ठीक है। रिन्यू कर करके 3 साल तक, ये नहीं कि अब जैसे नेशनल इमरजेंसी में तो मैंने बताया ना आपको, आप रिन्यू करा करा के 10 साल तक इमरजेंसी लगा सकते हो। अगर आपको लगता है ज़रूरत है तो आप 10 साल तक नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हो, बशर्ते आपको हर 6 महीने में रिन्यू कराना होगा, ठीक है। इसको लेकिन आप अगर 6-6 महीने में रिन्यू करा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक इम्पोज कर सकते हो, ठीक है। तो दिस इज अबाउट नेशनल स्टेट इमरजेंसी। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी कोई लिमिट नहीं है, मतलब मान लीजिए आज अगर प्रोमिलगेट होती है और अगर अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद उसमें ऐसा कोई नहीं है कि 6 महीने के बाद रिन्यू कराना होगा या 2 महीने के बाद, रिन्यूअल का कोई सीन नहीं है, वो लगी है तो लगी ही रहेगी जब तक आप खुद से ना हटाओ, ठीक है। देन ड्यूरेशन हमने डिस्कस कर लिया। देन इम्पैक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, तो आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन नेशनल इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी में अच्छा आपका कोई फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होता है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में देन अगेन आपका कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड होता है, सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में, ठीक है। देन इफेक्ट ऑन स्टेट्स, अब यहां पे स्टेट्स का मतलब क्या, हमारे राज्यों वाले स्टेट। तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, सेंट्रल कंट्रोल्स स्टेट, सेंटर ही कंट्रोल करता है स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट गवर्नमेंट इज डिसमिस्ड। स्टेट इमरजेंसी में मतलब वही होता है ना, राज्य सरकार गिर जाती है तभी राष्ट्रपति शासन लगता है, तो राज्य सरकार तो गिर चुकी है, ठीक है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो जाती है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या होता है इसका इफेक्ट, जो भी फाइनेंस रिलेटेड चीजें होती है ना स्टेट की भी, वो भी सेंटर ही कंट्रोल करता है टोटली, ठीक है। देन आपका जुडिशियल रिव्यू, तो नेशनल इमरजेंसी में अलाउड है, स्टेट इमरजेंसी में अलाउड है, फाइनेंशियल इमरजेंसी में अलाउड है। तो तीनों इमरजेंसियों में कॉमन क्या क्या है, डिक्लेयर्ड बाय और जुडिशियल रिव्यू। डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट तीनों इमरजेंसीज, जुडिशियल रिव्यू तीनों में एप्लीकेबल, रेस्ट बाकी सारे पॉइंट्स में कोई कहीं पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो आई बिलीव स्टूडेंट्स आप लोग को ना कंप्लीट क्लैरिटी मिल रही होगी, इमरजेंसीज किस टाइप की होती है, क्या ग्राउंड्स होता है, और जो भी उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, आई बिलीव आपको सारा समझ में आ रहा होगा, राइट। मूविंग अहेड, now let's discuss about certain amendments, important amendments relating to emergency, ठीक है। again a question which is relevant for your CLAT examination as well as your semester examinations, right? So if we talk about 38th amendment, ठीक है, 38th amendment of the Indian Constitution, जो कि आया था 1975 में इंदिरा गांधी जी के टाइम पे। तो इफेक्ट उसका क्या था इमरजेंसी पावर में, इट मेड इमरजेंसी प्रोक्लेमेशंस फाइनल, ठीक है।
बट इट वॉज रिमूव्ड लेटर, बाद में इसको हटा भी दिया गया था, ठीक है। मतलब ये जो आप इफेक्ट देख रहे हो ये सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए वैलिड था, बाद में ये हटा ही दिया गया था, ठीक है, तब मेंशन है रिमूव्ड लेटर, ठीक है। तो ये उतना आपके लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, आई जस्ट मेंशन कि दोज हु आर लुकिंग फॉर कंप्लीट क्लैरिटी, तो उनकी क्लैरिटी के लिए, बट दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन 42nd अमेंडमेंट 1976, ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट amendments of all time, right? And literally it shaped Indian constitution to a certain limit. Then effect क्या होता है emergency का? इफेक्ट ऑन इमरजेंसी पावर्स, 42nd अमेंडमेंट का क्या इफेक्ट था? इट स्ट्रेंथन्ड सेंटर्स पावर ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के टाइम पे जो सेंटर की पावर होगी वो ज़्यादा होगी, ये प्रोविजन 42nd अमेंडमेंट से लाया गया। देन 44th अमेंडमेंट, it was in the year 1978, it added safeguards like cabinets रिटर्न एडवाइस, ठीक है, जो मतलब कि प्रेसिडेंट जो है वो कैबिनेट की रिटर्न एडवाइस पे प्रोमिलगेट करेंगे, ये आया। देन लिमिटेड फंडामेंटल राइट सस्पेंशन, सारे के सारे फंडामेंटल राइट नहीं सस्पेंड हो जाएंगे, लिमिटेड होंगे। और इट रिस्टोर्ड जुडिशियल रिव्यू, कि इमरजेंसी कैन बी जुडिशियली रिव्यूड, इट वॉज ब्रॉट बैक बाय योर 44th अमेंडमेंट। द 44th अमेंडमेंट इज द सेफ्टी लॉ अगेंस्ट इमरजेंसी मिसयूज, ठीक है। चलिए, then moving ahead, there are certain important judgments related to your emergency provisions, just one by one have a look over them, ठीक है। and we'll be covering all these judgments in a separate class, and where we'll be discussing only case law along with their facts, along with what the court held and what is their significance in today's time, right? But in this we'll just go through the judgments, ठीक है, because we are covering emergency provisions in here, so we are just covering everything which is important for emergency, so we don't need to go through cases in this video, otherwise it will increase the length of the video, and the most part of it will get irrelevant, because you guys are here to watch for the emergency, to learn about the emergency, so let's just stick to the topic only. So the case is ADM Jabalpur versus Shivkant Shukla. It was in the year 1976, and in this case the court held that the upheld suspension of fundamental rights during emergency, then it was later overruled, ठीक है। upheld suspension of fundamental rights मतलब 1976 में इस जजमेंट में कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स जो है वो रहेगा, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंडेड ही रहेंगे बाद में, लेकिन ये रूलिंग ओवर रूल हो गई थी, ठीक है। देन मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1980, ठीक है। तो इट रीअसर्टेड बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपीज पोस्ट इमरजेंसी, ठीक है। 1980 में जब ये केस हुआ था तो एक बैलेंस इसने एस्टेब्लिश किया था बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। देन एसआर बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर 1994, इट मिसयूज ऑफ आर्टिकल 356, यस। तो अगर कोई आर्टिकल 356 का मिसयूज करता है तो इट कैन बी ए सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है। तो ये 1994 में इस केस के थ्रू द इमरजेंसीज यानी कि 356 द नेशनल इमरजेंसी, इट केम अंडर द परव्यू ऑफ जुडिशियल रिव्यू थ्रू दिस केस, राइट। सो प्रोसीजर, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसीज देख लेते हैं एक बार, ठीक है स्टूडेंट्स। सो दिस इज व्हाट प्रोसीजर, approval and duration of emergencies. So let's have a very detailed look over this table, as it covers literally everything which you need to know for your CLAT perspective or to build your conceptual clarity over this topic, right? So the types of emergencies we already know: national, state, financial, right? So we have how many types of emergencies? We have national emergency, then we have state emergency, and we have financial emergency, right? So all the three types of emergencies, they are declared by whom? They are declared by, yes, right, President of India. So President of India तीनों डिक्लेयर करते हैं। कैसे प्रोसीजर होता है? नेशनल इमरजेंसी, इट इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट। आई बिलीव यू आर एबल टू लुक थ्रू दिस टेबल, लेट मी जस्ट जूम यू इन मोर, let me just go through this. Yes, the text is pretty much visible, fine. So students, yes, it is declared by president on the written advice of the cabinet, then state emergency usually on governor's report, ठीक है, and then third is also proclaimed by president, right? Then approved within, approved by and within, मतलब अगर नेशनल इमरजेंसी, स्टेट और फाइनेंशियल कितने टाइम तक ये अप्रूव हो जानी चाहिए, तो हमें पता है कि नेशनल इमरजेंसी शुड बी अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, लोकसभा से भी राज्यसभा से भी, और कब तक? विद इन 1 मंथ, एक महीने के अंदर ये आपकी वो हो जानी चाहिए, अप्रूव हो जानी चाहिए, ठीक है। देन आपकी स्टेट इमरजेंसी अगेन बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स,
यहाँ पे 2 महीने का टाइम मिल रहा है। अगेन फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 2 मंथ्स, फाइन। देन ड्यूरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, तो कितने टाइम का, इसका मतलब ड्यूरेशन क्या रहता है, 6 मंथ्स फ्रॉम अप्रूवल, ठीक है। मतलब एक बार अगर अप्रूव हो गई है तब अप्रूवल के बाद से लेकर के 6 महीने तक फिर ये चलती रहेगी, ठीक है। देन स्टेट इमरजेंसी अगेन 6 मंथ्स फ्रॉम अप्रूवल, राइट। एंड देन आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली अंटिल रिवोक्ड, फाइन, जब तक रिवोक ना हो जाए। देन आपका एक्सटेंशन कॉन्टिन्यूएशन, मतलब अगर एक्सटेंड करने की जरूरत पड़ रही है तो उसका क्या वो है, प्रोविजन है। सो नेशनल इमरजेंसी इट कैन बी एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ्स बाय फ्रेश पार्लियामेंट्री अप्रूवल, ठीक है। और इससे आप इसको अनगिनत बार कितने भी टाइम तक फिर आप इसको अप्रूव करा के 6 महीने में कितने भी टाइम तक लगा सकते हो। बट स्टेट इमरजेंसी आप 6 महीने में अप्रूव करा सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 3 साल तक जा सकती है, ठीक है। तो इट मे बी एक्सटेंडेड एवरी 6 मंथ्स, मैक्सिमम 3 years विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट प्लस ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल इमरजेंसी फोर्स, ठीक है। देन आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन रिवोक एनी टाइम, लैप्सेस ऑटोमेटिकली इफ पार्लियामेंट डिसअप्रूव्स, ठीक है, अपने आप ही लैप्स हो जाती है अगर पार्लियामेंट डिसअप्रूव कर दे, ठीक है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी आपका हमने सारा देख लिया। देन आपका लास्ट आ जाता है रिवोकेशन का, यस रिवोकेशन। सो दस एक सेकंड, इसमें है नो स्पेसिफिक रिन्यूअल साइकिल रिमेन यूजुअली अंटिल प्रेसिडेंट रिवोक्स, ठीक है। हाँ, तो जब तक फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट रिवोक ना कर दे तब तक ये लगी रहती है, ठीक है। देन वी हैव रिवोकेशन, अगर नेशनल इमरजेंसी को हटाना है तो उसका क्या प्रोविजन होगा। सो बाय प्रेसिडेंट सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन और इफ लोकसभा डिसअप्रूव्स, मतलब मान लीजिए या तो प्रेसिडेंट ही कह देते हैं कि अभी सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन मतलब कि पहला प्रोक्लेमेशन उन्होंने लगाने का दिया, सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन मतलब पीछे से एक और प्रोक्लेमेशन दिया हटाने का, ठीक है। तो सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन और इफ लोकसभा डिसअप्रूव्स, कि मान लीजिए प्रेसिडेंट ने अप्रूव कर दी लेकिन लोकसभा ने फिर वो वैलिड ही नहीं करी, अप्रूव ही नहीं करी दोनों हाउसेज से, ठीक है। और इफ लोकसभा डिसअप्रूव, स्टूडेंट्स आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे बोथ हाउसेज की बात नहीं हो रही, लोकसभा की बात हो रही सिर्फ। अगर लोकसभा डिसअप्रूव कर देता है तो भी इमरजेंसी हट जाएगी, ठीक है। देन स्टेट इमरजेंसी, प्रेसिडेंट कैन रिवोक एनी टाइम, लैप्सेस ऑटोमेटिकली इफ पार्लियामेंट डिसअप्रूव्स, ठीक है, अपने आप जब चाहे प्रेसिडेंट हटा सकते हैं इसको, स्टेट इमरजेंसी को। एंड देन आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी बाय प्रेसिडेंट्स ऑर्डर व्हेन सिचुएशन इंप्रूव, जब पैसों की थोड़ी वित्तीय स्थिति ठीक हो जाएगी तो प्रेसिडेंट खुद ही ऑर्डर दे करके उसको हटवा सकते हैं, फाइन। Then these are certain safeguards against misuse of emergency, ठीक है। तो रिटर्न एडवाइस ऑफ द कैबिनेट इज मैंडेटरी नाउ प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 352, कि मान लो राष्ट्रपति को अपने एकदम से ख्याल है कि चलो आज इमरजेंसी इंपोज कर दो, तो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आपने भी खुद देखा कि इमरजेंसी अगर प्रोक्लेम हो जाती है तो कितने सारे चेंजेस आ जाते हैं गवर्नेंस में, ठीक है। तो कोई बच्चों की चीज़ नहीं है इमरजेंसी, इट इज समथिंग विच शुड बी ऑपरेटेड वेरी केयरफुली, राइट। सो फर्स्ट सेफगार्ड इज रिटर्न एडवाइस ऑफ द कैबिनेट मैंडेटरी, ठीक है, रिटर्न एडवाइस कैबिनेट की जरूरी है। सेकेंड इज मैंडेटरी पार्लियामेंट्री अप्रूवल विद इन टाइम लिमिट, जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हर 6 महीने में अप्रूव कराना होगा। थर्ड इज पीरियोडिक रिव्यू एवरी 6 मंथ्स, ठीक है, हर 6 महीने में, वही जो हम लोग बात कर रहे हैं, पीरियोडिक रिव्यू होगा, इमरजेंसी का रिव्यू होगा 6 महीने के बाद, फिर उसमें रिव्यू में सोचती है सब पार्ट जो भी रिस्पेक्टिव लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं, लाइक हमारे वही ऑब्वियस सी बात है लेजिस्लेटर्स एंड देन हमारे एग्जीक्यूटिव्स, राष्ट्रपति हिमसेल्फ। सो दे पीरियोडिकली रिव्यू इट इन एवरी 6 मंथ्स कि क्या अभी सिचुएशन नॉर्मल है, हमको दोबारा से एक्सटेंड करना पड़ेगा। देन फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, ठीक है, 17 कैन ऑल्सो बी नॉट सस्पेंडेड। देन आपका जुडिशियल रिव्यू इज अवेलेबल फॉर ऑल प्रोक्लेमेशंस, ठीक है, फाइनेंशियल के लिए भी, नेशनल के लिए भी, स्टेट इमरजेंसी के लिए भी, ठीक है। देन पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, इमरजेंसी लैप्सेस ऑटोमेटिकली इफ नॉट रीअप्रूव्ड, अगर 6 महीने में अगर रीअप्रूव नहीं होती तो अपने आप इमरजेंसी हट जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल फॉर टुडे, हमारा आज के लिए इतना ही था सेशन में। सो टुडे जस्ट to summarize, we discussed about emergency provisions which are provided from article 352 to 360. We discussed about 3 types of emergencies: national, state and financial emergency. Then we discussed about the grounds upon which these emergency can be proclaimed, the approval limit and how many times these can be imposed,
is there any certain time limit, then we discussed about certain important case laws, certain important amendments. So all the points which we discussed here are relevant for your CLAT examination and targeted just for your CLAT examination. मैं यहाँ पे कुछ ऐसा extra नहीं बता रहा हूँ. Yes, obviously there are so many details behind this as well, but the content which you are reading here, which you are studying here, is relevant for CLAT, and I have filtered out all the information which is CLAT relevant and removed unnecessary things. So this is the best spot to prepare for CLAT examination. We are preparing a playlist of all the important topics of constitutional law. We have uploaded a video of DPSPs as well. I hope you have watched it. If you have not watched it, you can just go through our playlist section and you will find many amazing videos, many important videos for your CLAT examination. So students, with this, all the very best. Take care. And if you have any doubts, any confusion, any queries, keep commenting it in the comment section, and I'll be more than obliged to help you. And we have also started our CLAT 2027 preparatory batches as well. So make sure to check out those batches if you are preparing for CLAT 2027. Until then, all the very best. Goodbye.